So I have NaOH, I'm reacting it with H2SO4 and it gives Na2SO4 and water. No, Garv, it is not a test. It is a regular class. Test we will keep it on Wednesday, probably. Right? Listen. Yeah. Listen. More important thing here. Okay, please, Wednesday. Fine, Wednesday. Now listen. I have 0.1 molar, 0.1 molar, 100 ml of NaOH solution. It is reacting with, density of the solution is 1.04 gram per ml. ठीक है, and this is small m. Small m का मतलब क्या होता है? मोलर होता है कि मोलल होता है? मोलल. मोलल, MOLAL, right? Now H2SO4. I am reacting it with 100 gram, 49% weight by weight. Weight by weight लिखने की जरूरत नहीं है. 49% solution. The yield of this reaction is 80%. By the amount of Na2SO4 and water which is produced. Oye, blur hai video. Please don't say that. No sir. हाँ No सर. sir. No sir. नहीं ना बेटा, जिसका ब्लर आ रहा है प्लीज लॉग इन अगेन. नाउ ये क्वेश्चन समझ में आया? 0.1 मोलर 100 ml of NaOH solution उठाया है. डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.04 ग्राम पर ml है. H2SO4 100 ग्राम 49% है. दोनों को आपस में रिएक्ट करवा रहा हूँ. And I want Na2SO4 and H2O. The percentage yield of this reaction in Na is 80%. तो सबसे पहले क्या करोगे? दोनों हाँ देखो पहले बैलेंस करोगे. वेरी गुड. उसके बाद मोल्स NaOH का वेट. देखो NaOH और H2SO4 दोनों का डेटा देगा है ना. तो मतलब कुछ तो लोचा है. अगर दोनों का डेटा दे रखा तो उनमें से क्या होगा? एक लिमिटिंग रिएजेंट. तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे दोनों. नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करोगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ. जो मिनिमम है उससे कैलकुलेट करोगे. जितना आना उसका कितना बनेगा? जितना बनना चाहिए 80%. सॉल्व इट. एक बार लॉग इन कर, लॉग आउट करके लॉग इन कर लो.
आंसर आया गाइस? NaOH के नंबर ऑफ मोल्स कितने निकाले? टेन मिलीमोल। हाँ 10 मिलीमोल। NaOH के मोल कितने निकाले? स्टार्ट करें? यस सर। ओके ओके लिसन, सबसे पहले बैलेंस कर लो 2 2 बैलेंसिंग ओवर. Yes, sir. यस सर। Very good. Now listen. Now understand that I have 0.1 molar 100 ml NaOH and density इतना है. सर क्या कह रहे हो? संजना आवाज नहीं आ रही? गाइस आवाज आ रही है? यस आ रही है sir. आ रही है. संजना चेक द ऑर्डर. बंद है. Okay. Listen. 0.1 molar 100 ml NaOH है. मुझे नंबर ऑफ मोल्स चाहिए. 0.1 molar का मतलब क्या होता है? What do you mean by 0.1 1 molar? mole of NaOH in 1 kg of solvent. 0.1 मोल ऑफ NaOH कितने? 1 kg of solvent. 0.1 मोल ऑफ NaOH In 1 kg of NaOH in 1 kg of solvent. वाह ठीक है. Now understand that 0.1 molar दे रखा है. I have volume of solution and density of solution. So tell me one thing, what is the mass of solution? 104 gram. Mass of solution 104 gram. Density into volume 104 grams. Right? In that 104 grams, I have a solvent as well as solute. So this should be a mass of weight of solvent plus weight of solute. Right? Right? Yes, sir. Very good. Now listen.
listen. Shall I say that molality is equal to 0.1 should be equal to number of moles of solute by weight of solvent in kg? Correct. Yes, sir. Correct. Now listen. I want number of moles of solute. What I'll do here, should I say that weight of solute NaOH by molecular mass is equal to number of moles? अरे आया ना? Yes, sir. Yes, sir. वेट को क्या लिख सकता हूँ मैं? 40 into number of moles. Yes, sir. Very good. So understand one thing. WB को मैं 40 into number of moles लिख सकता हूँ. Just put that in here. So I'll get WA plus 40 NB is equal to 104. Then WA becomes 104 minus 40 NB grams. But I want in kg. What should I do? Divided by 1000. Divided by 1000. So I'll get 0.1 is equal to NB divided by, this will become divided by 1000, not WA in kg. Will become 104. क्या? सर घर की बातें कर रहे हैं लोग. क्या guys? क्या हुआ? अभी क्या हुआ? तो WA in kg डाल दो. 104 minus NB into 1000. इसको सॉल्व करो. Minus 40 NV. एक मिनट. One not 4 minus 40 NP. Now solve this and tell me the number of moles of NaOH. Solve this and tell me the number of moles of NaOH. नंबर ऑफ मोल्स कितना है इसका? सही है बेटा, ये सही है नंबर ऑफ मोल्स? हाँ सर यही है. अच्छा सुनो, shall I rub this? Yes, sir. I want to copy that. कोई ऐसा है जिसको कॉपी करना है अभी?
नो डन ठीक है सर हाँ सर बेटा हाँ सर, आप मास ऑफ सॉल्यूशन में डेंसिटी तो वो सॉल्यूशन के लिए, पर जो वॉल्यूम है वो हमने NaOH का लिया ना। नहीं बेटा NaOH सॉल्यूशन का लिया ना, क्या वॉल्यूम कैसे ले सकते हो NaOH का, वो तो सॉलिड है ना। हाँ ओके, सॉल्यूशन। Density of NaOH solid, हाँ, ओके सॉल्यूशन। 100 ml of 0.1 मोलर 100 ml of NaOH सॉल्यूशन लिया। जब मैंने ओके। उसका मोलालिटी डिफाइन किया तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन होगा ना। हाँ right। हाँ समझा। हाँ सर। चलो अभी हटाओ उसको। लिसन number of moles I got 10.4 by 1004 अरे 1004 को approximately 1000 ले रहा हूँ बिकॉज इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा 0.0104 मोल्स। गेटिंग इट बच्चा पार्टी? अरे Yes, sir. समझ में आया क्या किया? यस सर। तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, अप्रोक्सीमेटली यही आंसर आएगा। ठीक है हिमानीश क्लास 10:35 तक स्टार्ट हो गई थी, नहीं 10:45 45 50 तक स्टार्ट हो गई थी। सर मैं क्लास में था, वो मुझे दिखाया, वो आपका कुछ भी नहीं दिखा रहा था, ना ऑडियो दिखा रहा था ना वीडियो दिखा रहा था, तो मुझे क्लास स्टार्ट ही नहीं हुई। अभी दिख रहा तेरे को? का वो देखा तो वो Listen, अभी दिखाई दिया। अच्छा क्लास है कितने बजे तक? 12:30। हाँ 12:30। 12:30 की चलो ठीक। अच्छा सुनो, सर 12:15 तक है, 12:30 को मैच। fine listen I have that many moles of NaOH. Now how many moles of H2O I have? If 100 gram solution is there, in that 49% of H2O is there, so how many grams of H2O? 49 हाफ मोल। 49 divided by 100 into 100. 49 grams. Number of moles? 49 by 98. कितना है? हाफ। हाफ मोल। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा? NaOH। सोचना भी नहीं है इसके लिए तो NaOH. I'll not do calculation with respect to this. I'll do every calculation with respect to this. Now understand that 2 moles forms 1 mole, then 0.0104. How many moles? 0.052। So 2 मोल 1 मोल बनाते हैं तो इतने कितने बनाएंगे 0.0104 डिवाइड बाय 2। 2 मोल बना रहे तो 0.0104। बात समझ में आई? अब वो कह रहे हैं इसका जो यील्ड आया है वो 80% आया है, आना इतना चाहिए था, आया कितना? 80%। उसका 80%, तो 0.0104 by 2 into 0.8, 0.0104 into 0.8. Done, guys. यस सर। एक बार नंबर ऑफ मोल्स आ गया तो उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, मास आ जाएगा। किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे मास आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास करो हो जाएगा। जल्दी करो क्वेश्चन। तुमने कहा तुमको स्टोइकियोमेट्री में प्रॉब्लम है तो स्टोइकियोमेट्री दे दिया, तुमने
मोलारिटी डेंसिटी वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, वो दे दिया। साथ में परसेंटेज यील्ड भी डाल दिया। डन। सर, हेलो सर। सर, हाँ, सर अगर एनटीपी और एसटीपी वाले क्वेश्चंस में हमें मेंशन नहीं किया कि एनटीपी पे एसटीपी पे, तो हमें क्या अज्यूम करना? कुछ नहीं अज्यूम करो, जरा अभी अज्यूम करके सॉल्व कर लो। टेक पॉलीमर नंबर ऑफ, विल गिव यू द आंसर। ओके सर। तुम्हें अज्यूम करने की जरूरत नहीं। तो जैसे नंबर ऑफ मोल्स को डील करते हो वैसे वॉल्यूम को डील करते हो, बट ओके डिपेंड सर। करता है उसमें प्रेशर कांस्टेंट और टेम्परेचर कांस्टेंट देना चाहिए। ठीक ओके है। सर, थैंक यू सर। हाँ, और बाकी कंडीशंस देख लेना। अगर वो खुले से बोल रहा है मोलालिटी वाला एक, मोलालिटी वाला एक और दो, हाँ दे रहा हूँ बेटा, अभी तो बहुत सारे। डन। यस सर। हाँ बेटा दे रहा हूँ स्पेसिफिक ग्रेविटी। अरे स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी होती है, डेंसिटी वाला दिया ना अभी। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब डेंसिटी होता है। सर माइक ऑफ है आपका। गाइस आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. बेटा आवाज आ रही है? यस सर। एवरीवन? या यस सर। Yes. चलो क्वेश्चन, let's say I have NaOH solution. I'm reacting this NaOH solution with ammonium phosphate. It gives sodium phosphate plus ammonia gas plus water. So this is the reaction going on, right? I'll not balance it, you will balance it, right? And the amount of NaOH which they have taken is 0.2 molar, density 0.2 molar, specific gravity, which is density, specific gravity of solution is 1.08 or 008 gram per ml.
right? And what extra they have given? That's it. 0.2 molar, and they have taken 200 ml of solution. I'll make it 500 ml of solution. They are reacting it with 200 gram of 200 gram of 50% weight by volume solution of this thing, and the density of solution is given as 1.5 gram per liter. Right? दोबारा सुन लो. 0.2 molar 500 ml, specific gravity 1.008, specific gravity 1.008, and 200 gram of 50% weight by volume solution. Density of the solution 1.5 gram per ml. क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। गाइस क्वेश्चन समझ में आया? Yes. अरे मेरे लाल पीलो हरे नीलो क्वेश्चन समझ में आया? हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. आ गई तुम लोगों की? सर मेरा वीडियो लैग हो गया था, तो आप इस फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? I The can't hear you. video blur आ रहा है. Sir, video blur आ रहा है. तो फाइन क्या करना है? चलो सॉल्व करो इसको. सॉल्व इट. सर फाइंड क्या करना है? No, Mohit, I can't hear you. सर फाइंड क्या करना है? अभी आवाज आ रही है? आपकी आ रही है, आपको आ रही है क्या हमारी? हाँ, मेरे को भी अब तुम्हारी आ रही है. सर ढूंढना क्या है इसमें? हाँ, ढूंढना क्या है? इसके हैं सर फाइंड क्या करना है? बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na3PO4 and number of moles of ammonia. ओके सर। Arif, I can hear that he's saying what to find. The thing is, you have to find number of moles of Na3PO4 and ammonia. Right? जल्दी सॉल्व करो. परसेंटेज यील्ड 50% इसका.
सर वाटर की डेंसिटी क्या है इधर? क्या बेटा? क्या बोला? सर वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है ना इधर? वाटर की नहीं बेटा, उसकी क्या नाम है, सॉल्यूशन 1.008 और उसका सॉल्यूशन का डेंसिटी 1.5। ठीक है। यस हाँ बेटा, सॉल्व करो जल्दी, सिंपल, वेरी सिंपल। चलो, listen to it. I have 0.2 molar 500 ml specific gravity 1.008. समझना है इस चीज को। मेरा पर्पस है NaOH निकालना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकालना। मोलालिटी कहता है 0.2 मोलर है जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB है और वेट ऑफ सॉल्वेंट मुझे किस में लेना है, केजीज के अंदर। एग्रीड? यस गेटिंग अ पॉइंट। अब एक बात बताओ, मेरे को वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए केजी के अंदर और मेरे को स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉल्यूशन का दे रखा है और वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का दे रखा है, तो मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। हाँ सर। व्हाट विल Yes, बी द sir. मास ऑफ सॉल्यूशन देन? 500.4 grams. So the mass of solute, the solvent plus mass of solute should be equal to 500 into 1.008. Done. Yes, तो कितना आ sir. जाएगा ये? 500.4 grams. 500.4 ग्राम। That is weight of solvent plus weight of solute. कोई दिक्कत इसके अंदर? बाबा No, कोई sir. नहीं ना? अच्छा एक बात बताओ, वेट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब मेरे पास क्या है, दो वेरिएबल्स यहाँ है और दो वेरिएबल्स यहाँ है, तो मेरे पास दो इक्वेशन है और तीन वेरिएबल दिख रहे हैं तुमको, करेक्ट? तो तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल होते तो मैं सॉल्व कर सकता था। तो मेरे को क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन में से ना दोनों इक्वेशन को दो ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो या तो इसको वेट में ले लो WB, या तो इसको नंबर ऑफ मोल्स में कर दो। तो क्या करोगे तुम, वेट में लोगे कि नंबर ऑफ मोल्स में करोगे, तुम्हारे ऊपर है ना, बिकॉज तुम्हें सॉल्व करना है इसको। अरे शैल आई कन्वर्ट दैट थिंग इनटू नंबर ऑफ मोल्स और शैल आई स्टार्ट कन्वर्ट दैट थिंग इनटू वेट? हाँ जी बेटा। Sir, अब number of moles weight by हाँ, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट बाय weight by मॉलिक्यूलर molecular. है ना? मॉलिक्यूलर हाँ तो हाँ चलो ठीक है, तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, करेक्ट है ना? तो Yes, sir. एक काम करो, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे इसको? मैं कह सकता हूँ WB वेट दे रखा, तो वेट विल बी इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट दैट इज 40 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो वेट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू 40। यस सर। Yes, sir. वेट हो जाएगा तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स इनटू 40। तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू 40 डाल दो इधर, तो WA प्लस नंबर ऑफ मोल्स इनटू 40 इज इक्वल टू 5004.4 ग्राम, करेक्ट? तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स की टर्म्स में, उस वेट ऑफ Yes, सॉल्वेंट sir. को इधर डाल दो।
जैसे वेट ऑफ सॉल्वेंट को इधर डालोगे तो नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में एक इक्वेशन आ जाएगी, करेक्ट? यस सर। डायरेक्ट उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे उस केस के अंदर? सर 0. हाँ बेटा, सर वो 1.008 है ना हाँ बेटा, सर, तो 504 आएगा, 500.4 नहीं आएगा। हाँ 504 आएगा, 504 आएगा, सही है, एग्जैक्टली सही है, 504 ग्राम हो गया। तो 0.2 is equal to number of moles of solute divided by 504 minus 40 NB by 1000. Agreed? Yes, Guys, हाँ कि ना? यस सर। अच्छा, तो कितना आया ये? नंबर ऑफ मोल्स कितना आया? 0.1 0.1 श्योर हो? यस सर, मैंने 504 अलग इंटू 0.2 कितना आएगा? 504 इंटू 0.2 कितना आएगा? 100.8 minus 8 NB is equal to 1000 NB. So I will get NB as number of moles as 100.8 divided by 1008. That comes out to be 0.1. Finally, number of moles of NaOH is 0.1. Agreed? Right. यस सर। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करो। इसको रब करूं क्या, जो भी सॉल्यूशन है? बेटा रब करूं सॉल्यूशन को? यस सर। ओके, अब क्या करोगे? पहले तो ये बताओ कितना ग्राम 50% weight by volume solution density of solution is given to you. 50% weight by volume का मतलब क्या होता है? Weight of solute in grams divided by volume of solution in ml into 100 should be equal to 50. Agreed? यस सर। वेरी गुड। अच्छा, तो मेरे को वेट चाहिए और उसके लिए मेरे को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। मेरे को मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है और डेंसिटी दे रखा है, क्या करूं? डिवाइड सर। डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या निकलेगा? वॉल्यूम क्या निकलेगा? 400 ml। अरे क्या कर रहे हो यार? वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। यस सर। है ना? तो मास कितना है? 200 डिवाइड बाय डेंसिटी कितना है? 3/2, तो 400/3 आया, करेक्ट? 100/3 liters। हाँ, अरे कोई नहीं, ml आ गया ना, 400/3 ml। अब वेट निकालना है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल टू 50/100 into वॉल्यूम, दैट इज 400/3। कोई डाउट गाइस? कोई डाउट इसके अंदर? अरे कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। नहीं ना, नहीं ना। अच्छा मेरे को एक बात बताओ,
मुझे नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, राइट? यस सर। अमोनियम फॉस्फेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना निकाला? अमोनियम है 18, 18 इंटू 3, तो 18 इंटू 3 141 31 प्लस 64 कितना है? 64 plus 31 is 95, 95 plus 80 into 3, 149 149, 149. So number of moles will become, इससे हटा दो 200 by 3, so 200 by 3 divide by 149 कितना आएगा? छोड़ो इसको, ऐसे छोड़ दो। बात समझ में, नंबर ऑफ मोल्स आ गया। तो मेरा फर्स्ट टारगेट क्या था? किसी भी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स निकालना। एग्रीड? राइट? यस सर। वेरी गुड। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। किसी भी स्टूडेंट को नंबर ऑफ मोल्स निकालने में दिक्कत हुई अभी तक? एक चीज समझ में आई क्या किया हम लोगों ने? हाँ सर। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है ये पूछ लो। नो सर। वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस। तो नंबर ऑफ, वेरी गुड, number of moles will come out as यहाँ पे 0.1 है, that is 200 by 3 into 149, ठीक है। बैलेंस कर लो इसको। जब बैलेंस करोगे 3 सोडियम चाहिए तो 3 NaOH आ जाएगा। अमोनिया H2O, सोडियम फॉस्फेट, अमोनिया 3 आएगा एंड वाटर भी 3 बैलेंस हो गया, करेक्ट। अब लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, करेक्ट। 0.1 मोल है और इधर 1 मोल है, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का डिवाइड करूं, ये हो जाएगा 0.1/3 और यहाँ पे इसको 150 मान लेते हैं, है ना, थोड़ा लाइफ सिंपल हो जाएगा। 200 डिवाइड बाय 3 इंटू 150, बहुत कम अप्रोक्सीमेशन किया था, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ 4 आएगा, यहाँ 3 आएगा, तो 4/12, 4/9 कितना होता है? पॉइंट 3 एंड 3 चलता रहेगा। समझ में आइए? हाँ 0.4 आएगा ना, 36 then 4 है। हाँ 0.44 वैरी करता रहेगा। एक बात बताओ, लिमिटिंग रीजन कौन सा? ये हो जाएगा तुम्हारा 0.0333 सो ऑन। तो इनमें से लिमिटिंग रीजन कौन सा? NaOH या फिर NaOH? तो मतलब सारी कैलकुलेशन कौन करेगा? NaOH। चलो मुझे बताओ, 3 मोल 1 मोल दे रहा है अमोनियम सोडियम फॉस्फेट का, तो 0.1 मोल कितने मोल देगा? 0.1/3। 0.1/3, वेरी गुड। 50% यील्ड है, तो कितने मोल्स आएंगे? 50% उसका, तो इंटू 1/2 करो। 1/6। 1/2 ना, हाँ मतलब ऐसा 1/60 आ जाएगा, करेक्ट। 3 मोल दे रहा है, तो 0.1 मोल 0.1 देगा एंड 0.1 देगा। परसेंटेज यील्ड 50% है, तो 1/2 एंड 1/2। समझ में आया? हाँ सर। यस सर। लिख लो।
हाँ। आगे चलें गाइस। सर 1 मिनट। हाँ बेटा, सर वीडियो ब्लर है। ब्लर आ रहा है वीडियो बेटा, एवरीवन? नो सर। नो सर। नहीं, नो सर। अरे बेटा सुनो, कनेक्शन चेक करो ना, आ जाएगा ठीक। यस या आज सोलर इक्लिप्स है ना? यस यस सर। Yes, अभी चालू है। अभी चालू है? हाँ सर। 12:10 को मैक्स होगा मैक्सिमम। 12:10 को मैक्स होगा, दैट मीन्स अंधेरा हो जाएगा बाहर। पूरा सर नहीं होगा, बॉम्बे में पार्शियल है। बॉम्बे में क्या? पार्शियल है। पार्शियल एक्लिप्स है। यूजलेस। कौन से पार्ट में इक्लिप्स है? अपने साइड में होगा? पार्शियल इक्लिप्स का मतलब क्या? कुछ रीजन पे इक्लिप्स दिखेगा, कुछ रीजन पे नहीं दिखेगा, ऐसा? नो सर, अच्छा, कंप्लीटली मतलब कवर नहीं करेगा। मतलब कंप्लीट रीजन में पार्शियल दिखेगा, करेक्ट? हाँ, मून कवर नहीं करेगा सर। Oh, we are not in the sight of that thing exactly, right? यस सर, राजस्थान से रिंग ऑफ फायर Eclipse. राजस्थान में നമ്മളിവിടെ കാണോ क्या क्या? सर एनुअल ലൈറ്റ് വെട്ടിട്ടുണ്ട്. अरे बेटा म्यूट करो अपने आप को। ഫീൽഡ് ലൈറ്റിന് ലൈറ്റ് ചെയ്യാലോ, ഇരുട്ടാവുന്നുണ്ടോ? आज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट डे भी है। ഇന്നോ? हाँ बेटा, आज देखते हैं। आदर्श बेबी। चलो डन। चलो मैं क्या कह रहा हूँ, शुरू करें क्वेश्चन नया? यस सर। टुडे इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट डे आल्सो। Yes, sir. तो मतलब आज जो है रात मतलब 8 बजे तक होगी, कितने बजे तक होगी? At what time? पता नहीं सर। आज बाद में डे भी है सर सुबह के आज। 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक रहेगा सर ये क्या एक्लिप्स। एक्लिप्स नहीं बेटा, व्हाट आई एम सेइंग है जैसे टुडे इज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट डे है, तो टिल व्हाट टाइम द सन विल कितना सनसेट विल टेक प्लेस? Till 7:30 almost. ओके। अरे वर्ल्ड योगा डे भी है, फादर डे भी है, सब कुछ है आज, Sir, right? today is equinox. और कुछ बोलो। So क्या? equinox है, equinox. इक्विनॉक्स, हाँ। चलो सर अभी आज सुनो की आखिरी दिन भी बोला था ना, मायन कैलेंडर का आखिरी दिन। चलो सॉल्व करो, बहुत हो गया, ठीक है। ए आई विल गिव यू क्वेश्चन, डू इट नाइसली, ठीक है? लेट्स से Na3PO4 is reacting with AgNO3 to give Ag3PO4 plus NaNO3. ठीक है? Now this NaNO3 is which is produced over there is heated to give NaNO2 plus oxygen.
right? This oxygen is reacting with calcium to form calcium oxide solid. This calcium oxide solid is reacting with carbon dioxide gas to form CaCO3 solid. They have given us, I'll just make it very simple, right? Just don't worry. Molality नहीं दूंगा मैं. वो दो क्वेश्चन हो गए. They have given me 2 molar 200 ml of this solution Na3PO4, and they have given 1 molar 500 ml solution of AgNO3. Okay, now make it 600 ml solution of AgNO3, right? I want to know that how many moles of NaNO3 will be formed if the yield is 50%. Now that many number of moles will be utilized here, and the yield of this reaction is like 80%, and I'm getting this oxygen. This oxygen is reacting with calcium. Let's say the yield of this reaction is again 50% to give calcium oxide. Then I'll get calcium carbonate. The yield of this calcium carbonate is 80%. Now I want to know that how many grams of calcium carbonate will you produce? Getting it? Getting it? Hey, बच्चा पार्टी समझ में आया? Yes, sir. Hey, everyone. Now listen. What is the first step you will do here? Balance. What is the first thing? Balance. Just balance it. After balancing it, see, उसके बाद number of moles निकालना. अच्छा क्या बताओ, जब मोलारिटी और वॉल्यूम इन ml दिया होता है तो क्या करते हो? मल्टीप्लाई कर देते हैं. मल्टीप्लाई करते हो तो आएगा क्या? Number of moles. Number of millimoles. Number of millimoles, right? चलो मेरे शेरों सॉल्व करो. इसका आंसर चाहिए मेरे को जल्दी. Okay. Tell me how many millimoles of sodium phosphate are there? 400. 400. Molarity into volume in ml is 400 millimoles. So I'm calculating number of millimoles right now. But how many number of millimoles I have here? 600. 600. Right. Now balance the reaction. 1 mole plus 3. To give 1 and 3. 1 mole and 3 moles. 3. So first and foremost thing, what is the limiting reagent here? AgNO3. Yes, sir. AgNO3. AgNO3. How to calculate? AgNO3. Number of millimoles divided by 3. चलो ठीक है. तो 200 आएगा, 400 आएगा. So that is millimoles. Now I'll not consider it in the calculation of any other thing. Now understand that AgNO3, 3 moles is giving 1 mole. So 600 will give how many? 200. 200. Very good. 3 moles will give 3 moles. So 3 moles will give 3 moles. So 600 will give how much? 600. 600. Now the yield is 50%. That means 200 is supposed to produce. Now 50% will produce, right? So yes, it will become how much? 100. 100. It will become 300. 300. So the initial moles of NaNO3 I got it as 300. Correct?
Now tell me, Yes. 1 mole will give how many moles? Half. 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 So 300 will give how many? 150. 150. It should be 100% yield, right? But the yield is? 80%. So what should I do? 120. 120. Getting it? Now, I got one. No. Balance this. It become half O2. है कि नहीं? भाई बच्चा बात है. Yes, sir. So how many? 120. So 120 half mole will give 1 mole. So 120 will give how many? 240. 240. But उसका yield कितना आना चाहिए? 120. 120. Getting it? So मेरे पास 120 Yes, sir. millimoles है. 120 millimoles 1 mole लेता है तो 120 कितना देगा? 120. 120. उसका कितना आएगा? 0.12. हाँ तो कितना आ जाएगा? 80 बाय 8 into 12 कितना होता है? अरे 12 into 8 कितना होता है भाई? 96. 88. 96. हाँ सर 96. 96 millimoles. Now after getting 96 millimoles, just multiply that thing with molecular mass. So 96 millimoles into molecular mass will become 9600 milligram. तो कितने ग्राम आ जाएगा? 9.6 grams. Agreed? 9.6. Yes, sir. सबको दिख रहा है ये सब? Yes. Yeah. Yes. समझ में आई बात? Yes, sir. ओके. एक और. Yes. एक और. Yes sir. हाँ, sir. Very good. Sir, up this, guys. Yes, sir. Okay. हाँ. Yes, sir. ओके बेटा. एक मिनट. अरे भाई. हो गया? एक मिनट सर. हाँ बेटा. हो गया सर. ओके. चलो आगे देखते हैं. हाँ. ओके. Let's say NaOH is reacting with HBr. ठीक है. To give NaBr plus H2O. NaBr is reacting with copper sulfate to give sodium sulfate plus CuBr2. ठीक है. Let's say question is here. You have (200 grams 80% NaOH solution, right? And HBr is 200 grams
81% ऑफ HBr सॉल्यूशन। ठीक है, जब परसेंटेज के आगे कुछ नहीं लिखा होता तो कौन सा परसेंटेज होता है? वेट बाय वेट। वेट बाय वेट। ठीक है, तो मुझे NaBr चाहिए, H2O चाहिए, उसके बाद जो भी NaBr यहाँ बना वो CuSO4 के साथ रिएक्ट करके Na2SO4 दे रहा है और CuBr2 दे रहा है। ठीक है, मुझे इनके नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, इसके नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, इसके नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। उसके बाद यील्ड कितना है इस रिएक्शन का? लेट्स से इसका रिएक्शन का 50% यील्ड है, इसका भी 50% यील्ड है। जल्दी करो।